Okay, what I guess we have started our chapter metals and non-metals, if I'm not wrong. Yes or not? Yes or no, my Yes, dear? yes, sir. What Yes, we sir. have studied in last class, I guess we have completed physical properties of metals and non-metals. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I can see only three students. I guess there are more students. Can you tell me how many students are there? There are, I guess, seven, eight students, I guess. Akshit, Yes, sir. how many students are here? I guess seven, eight are there, no? Yes, sir. Okay, so we'll wait till 10:05, then we'll start. We'll wait for one more minute. Hope you are solving DPPs uploaded on your app. Yes, sir. I cannot see any doubt from your side. Nobody is sending me any doubt. So be regular in solving those DPPs, and if you feel any doubt, let me know. Okay, so today we are going to start with the topic chemical properties of metals and non-metals. When I talk about chemical properties, basically I'm talking about how your metal and non-metal are going to react with environment. Okay, now we'll discuss each of the case. First of all, let us take chemical properties of metal. Okay, in that, first of all, we will discuss reaction with air. So when a metal reacts with air, in fact, when I say air, it is oxygen. When the metal reacts with oxygen, it forms metal oxide, and this metal oxide can be basic, it can be amphoteric. Now here, this amphoteric means either acidic or basic. So let us have a look at few reaction that will clear your concept. You must be aware about activity series. Himani, can you tell me about activity series? What is activity series, Himani? Jyoti, your camera is off. Please tell me about activity series. Jyoti, can you hear me? Jyoti, are you there? Yes, sir. Yeah, tell me about activity series. What is activity series? अरे आदमी है. वेरी गुड. रिवाइज वगैरह किया करो बेटा. मैं कितना ही पढ़ा लूँ, मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ, अगर आप उसको बाद में रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो आप उसे भूल जाओगे. तो जब टीचर पढ़ाता है ना तब तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जैसे आप वो टॉपिक पढ़ के खत्म कर देते हो एंड आप उसको दोबारा नहीं देखोगे तो आप भूल जाओगे. मैं आपकी जगह पर मैं हूं तो मैं भी भूल जाऊंगा. ठीक है, तो आप ऐसा ना करें. आप सभी बच्चों से निवेदन है ये कि इस तरह की एक्टिविटीज ना करें, नुकसान आपका है. चलो अक्षित बताओ बेटा. सर ये वही ना जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं वो टॉप पे होता है और अक्षित, जो लो रिएक्टिव होता है वो बॉटम पे होता है सर. एग्जैक्टली ये सर याद है एक्टिविटी मेरे को. सीरीज और रिएक्टिविटी पोटेशियम, सीरीज सेम सोडियम, चीज है. कैल्शियम, बताओ.
नहीं होता सर क्या है, पहले तो इसके बारे जो में बताओ ना, मैट पहले सो बताओ होता क्या है। मेटल्स, कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो लाइट होते हैं, तो उनको हमने ऐसे बेसिस क्लासिफिकेशन कर रखा है रिएक्टिविटी पे। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो टॉप पे आते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम। हम्म। और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर, वो हमें हमने लीस्ट पे रख रखे हैं। वेरी गुड। लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिएक्टिविटी? मेटल की एबिलिटी, वो कैसे रिएक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट, वो कंपाउंड के साथ। अर्थात मतलब, so what is the meaning of activity series and reactivity series? See, basically, it's a series in which elements are arranged in decreasing order of their reactivity in a vertical column. So this is according to class 10th, your activity series. ये यहाँ पे आ रहा है मरकरी, सिल्वर, gold, गोल्ड then platinum. So down the group, reactivity of metal decreases. But here you need to understand that metals are electropositive in nature. Yeah, metals are electropositive in nature. So being electropositive in nature, it has a tendency to lose electron. Okay, so it has a tendency to lose electron. How easily it loses electron, that decides its reactivity. So if it is losing electron very easily, it is highly reactive. It is, if it is losing electron with moderate difficulty, it is moderately reactive. If it is losing electron with extreme difficulty, it is least reactive. You got my point? हेलो। यस सर। Yes, sir. सब सभी को आया समझ में मैंने क्या बताया? Yes, यस। sir. ओके गुड। Now, let us try to write equations with the help of these series. Now, potassium react with oxygen vigorously to give you potassium oxide. Okay. Now, this potassium oxide is basic in nature, and being basic in nature, it reacts with water to form base. In fact, water soluble base. This पोटेशियम। potassium hydroxide is a water soluble base, and we call it as alkali. This is alkali. Okay. Similarly, sodium reacts with the water to give you sodium hydroxide. Okay, now this is again, sorry, I made a mistake here. I need to discuss the action of oxygen. Now, sodium reacts with oxygen to give you sodium oxide. Now, this is again basic, and if you dip this and you mix this particularly sodium oxide in water, again you will obtain base, which is again water soluble base, and you can call it as alkali. Is that clear? Yes, sir. यस सर। चलो, now we will be writing more equations that will give you more idea. Please take a screenshot of this. Taken? यस सर। Yes, sir. Okay. Now we have written for potassium. Potassium with oxygen gave us potassium oxide. Sodium with oxygen gave us sodium oxide. Similarly, calcium also reacts with oxygen with calcium to give calcium oxide. Magnesium also reacts with oxygen to give you magnesium oxide. Aluminium also reacts with oxygen to give you aluminium oxide. Zinc reacts with oxygen to give you zinc oxide. Okay. Iron react with oxygen to give you iron 2,3 oxide. This is ferrous ferric oxide. Copper reacts with oxygen to give you copper oxide. But the important point to understand here is that as you move down the group, reactivity with oxygen decreases.
These reactions are extremely vigorous, extremely reactive reaction. They are also more reactive, but not as vigorous as these reactions. Now, as you move down the group, you need to provide heat. You need to provide little amount of heat to burn oxygen, magnesium. You must have seen magnesium wire. Have you seen magnesium wire? Have you seen magnesium wire burning? अक्षत कभी देखा बेटा? नो सर। जो लेबोरेटरी में जाना वहां पे मैग्नीशियम वायर होगा, ठीक है? तो वो अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, आपको एक बार उसको बर्निंग फ्लेम के पास लेके जाना पड़ेगा। पर अगर जैसे ही बर्निंग फ्लेम पे इट विल कैच फायर, इट विल स्टार्ट बर्निंग विद dazzling light, it will give you white dazzling light, and you must have observed that, मतलब आपने, आप सभी बच्चों ने दिवाली में फुलझड़ी जलाया होगा, तो फुलझड़ी में यस। जिस तरह की लाइट निकलती है ना, चमकदार लाइट, उसी को बोलते हैं व्हाइट dazzling लाइट, ठीक है? तो मैग्नीशियम वायर भी वैसे ही बर्न होता है, ठीक है? तो आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर सको तो आप इसका बर्निंग का प्रोसेस देख सकते हो, दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया। तो अगेन एल्यूमिनियम को और हीट करना पड़ेगा, जिंक को एल्यूमिनियम से ज्यादा हीट करना पड़ेगा, आयरन को जिंक से ज्यादा हीट करना पड़ेगा, कॉपर को तो समझो लॉन्ग टाइम तक हीट करोगे तब जाके वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, लॉन्ग टाइम हीटिंग चलेगी तब जाके आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का होता है, इस पर सवाल बहुत बनता है, तो याद रखना हमेशा ये ब्लैक कलर का होता है। इसको नोट करो सारी कॉपी में अपने, स्क्रीनशॉट मतलब नोट करो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपके हाथ पे सेट होने चाहिए। चलिए, हो गया सभी का? यस सर। चलिए, अब एक बात मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक सेकंड, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जब रिएक्ट करेगा, ये K2O जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये होगा वाटर सोल्यूबल बेस। सिमिलरली ये रिएक्ट करेगा वाटर से तो बनाएगा ये भी वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है? तो ये दोनों क्या है, अल्कली है, ठीक है? इसकी बात करूं तो ये रिएक्ट जब करेगा वाटर से तो ये क्या होगा, बेस ही है ये भी, तो ये भी क्या बनाएगा, बेस ही बनाने वाला है। इसकी बात करें, ये क्या है, देखो बाकी सारे क्या है, बेस ही है बेटा, बेसिक कलर, बेसिक नेचर के हैं, ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ये दोनों जो है ये एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक से, बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। तो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस H2O। बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेम गोज फॉर जिंक। लिखिए रिएक्शन इसकी, एग्जाम में आएगी बेटा ये रिएक्शन। कैन यू राइट रिएक्शन फॉर जिंक? ज्योति बताएगी इसका आंसर। सोडियम जिंकेट। बस बस शांत रहो, ज्योति लिख के दिखाएगी इसका आंसर, फॉर्मूला बताएगी, क्योंकि सेकंड चैप्टर मैंने कराया हुआ है ये। ज्योति कराया है ना? Yes, sir. गुड, ढूंढ के बताओ फटाफट, नोट्स पलटो और ढूंढो जिंक की रिएक्शन कैसे करवाई थी मैंने HCl से और NaOH से।
मिला बेटा? हैव यू फाउंड द आंसर? सर मैं बताऊं? बताओ। सर सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ओके। या ये क्या एसिड है, बेस है, क्या है ये? जैसे सवाल नहीं आता कैमरा ऑफ कर दो, है ना? वेरी नाइस। अब हिमानी की बारी। हिमानी बेटा तुम्हें बताओ, कैसे? ये जो सोडियम जिंकेट है, एसिड है या बेस है? सर शायद बेस है। वेरी गुड। ज्योति? यस सर। एसिड है या बेस है? बेस है। ना तो ये एसिड है ना बेस है, ये सॉल्ट है। अंडरस्टूड? मैंने सिखाया भी था आपको। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, जब ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। और जब ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगेन ही क्या बनाएंगे? सॉल्ट। सिमिलरली यहाँ भी क्या बनने वाला है? सॉल्ट। तो ये भी क्या हुआ? दोनों सॉल्ट है बेटा। यही तो प्रॉपर्टी बताई थी आपको। ZnO ले लो, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आप सभी को, कि जिंक जो होता है या जिंक ऑक्साइड जो होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है? बताया नहीं बताया था सेकंड चैप्टर में? अक्षय बताया था। सर मैं उस टाइम मैंने ज्वाइन ही नहीं करा था सर, मैं अभी रिसेंटली आया हूँ। वेरी गुड। हिमांशु बेटा बताया था। यस सर। ज्योति? यस सर। बताया था, नहीं बताया था? ज्योति बेटा बताया था, तो आप भूल कैसे गए? आप सभी बच्चों को रिवाइज करना है, और रेगुलरली रिवाइज करना है। जितना आप इसको हल्के में लोगे बेटा, देखो आप लोग, पता है आप लोग क्या, दुनिया का हर बच्चा ऐसे ही चलता है। जो एक जो मिडिल क्लास बच्चा होता है ना, अब सर मिडिल क्लास बच्चा क्या है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है, अमीर फैमिली होती है, गरीब फैमिली होती है, वैसे एक मिडिल क्लास बच्चा भी होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने उसका? यस सर। देखो, तीन कैटेगरी होती है बच्चों की। एक होता है रिच बच्चा। रिच में हमें, रिच का मतलब क्या है पढ़ाई में? एक्सीलेंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट। एक आता है मिडिल क्लास, ठीक है? ये वो बच्चा होता है जिसके ऊपर जब तक एग्जाम का प्रेशर नहीं आता ये किताब नहीं छूता, ठीक है? और एक आता है लोअर क्लास। ये कौन होता है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता दिन दुनिया से, ये अपनी मर्जी का मालिक है। यही लोग बड़े होकर के हमें पाव भाजी खिलाते हैं, हमारी सोसाइटी की साफ सफाई करते हैं। ये वो बच्चे होते हैं, ठीक है? नो टेंशन ऑफ स्टडीज, ठीक है? बाकी हाँ, अगर बैकग्राउंड अच्छा है, अगर जैसे पापा नेता हैं तो आप नेता बन जाओगे, 8वीं फेल हो तो क्या हुआ, है ना?
तो जैसे आई रिमेम्बर मेरा एक स्टूडेंट था 9th में, तो उसके पापा की ऑटोमोबाइल्स की शोरूम है। तो उस दिन उसको मैंने बहुत मारा। तो मैंने उसको पूछा कि क्या करना लाइफ में, 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा है तू। उसने वही मुझे जवाब दिया कि सर मैं तो पापा का शोरूम संभालूंगा, मैं क्यों पढ़ाई करूँ। तो या तो आपके गोल्स क्लियर हों, या तो आप अंबानी अदानी के फैमिली से हो, तो क्या पढ़ाई की जरूरत है, तो ठीक है पापा का बिजनेस संभालो। लेकिन ट्रस्ट मी, पढ़ाई क्यों जरूरी है बताता हूँ। देखो, पढ़ाई इंसान किस लिए करता है, मोस्टली स्टूडेंट को पता ही नहीं है पढ़ाई हम करते किस लिए हैं। पढ़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोई बेवकूफ ना बनाए। पढ़ाई इसलिए जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, अगर आपको लगेगा कि आपको ऐसा फील होता है कि पढ़ाई आपके ऊपर एक थोपा हुआ वो है, एक जिम्मेदारी है, जबरदस्ती का लाद दिया गया आपके ऊपर, तो ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने आप को नॉलेजेबल नहीं बनाओगे तो कोई भी आके आपको बेवकूफ बना देगा, कोई भी। ठीक है, पढ़ाई करने से आपको नॉलेज मिलती है, और उस नॉलेज से आपको ओहदा मिलता है सोसाइटी में, अच्छी कंपनीज में, गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसीज में आपको अच्छी जॉब मिलती है। उससे जेब में आपके पैसा आता है, और जब जेब में पैसा आता है बेटा, फिर बातों में आपके कॉन्फिडेंस आता है। एम आई राइट? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? No, sir. ठीक है, नो सर। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओ, दिस दिस डॉक्टर विल स्टार्ट गिविंग यू लेक्चर्स, और आपको ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ही कैन फूल यू इजिली। ठीक है, सो नॉलेज is for you. When you are learning, the purpose of learning is to enlighten you, is to make you aware what you are actually doing in your life. ये रियल लाइफ स्टडीज जो आप कर रहे हो इस वक्त, ये रियल लाइफ स्टडीज है, ये आपको जिंदगी में काम आएगी। ठीक है, सो इसको ना एज अ प्रेशर मत लो, थोपा हुआ जिम्मेदारी मत लो, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। क्योंकि यही सारी जो डिग्रियां बना रहे हो ना इस एज में, यही डिग्रियां आपको आगे चलकर सपोर्ट करेंगी। और आप तय करोगे कि जिसके नीचे आप काम करोगे, एक सभ्य इंसान होगा या असभ्य इंसान होगा। ठीक है, तो पढ़ाई इसलिए जरूरी है, ये मेरा लॉजिक है, कि जिंदगी में कोई आपको दबा ना पाए। ठीक है, नहीं तो आपको नहीं पता है लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे किस तरह से हरास कर सकते हैं आप लोगों को। लेकिन आप जब साक्षरता की ओर जाएंगे, आप नॉलेजेबल होंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी किसी भी कंपनी में काम करने की, अपनी चॉइस की कंपनी में काम करने की, अपने कंडीशंस पे काम करने की। वरना आपको पता नहीं है, जैसे अगर बात करूं, जैसे कोयले खान होता है, वहां तो बेचारे मजदूर लोग कोयले खान में काम करते करते मर जाते हैं, उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है। जितना आप टीवी पे हाइक देखते हो ना, ये हो गया वो हो गया, कोई वैल्यू नहीं है उन लोगों की, कोई जान की कोई कीमत नहीं इंडिया में। ठीक है, तो वैल्यू योर सेल्फ एंड वैल्यू दिस टाइम यू आर गेटिंग। बाकी सब चीजें भी करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी मत देखो, खेलो मत, सब करो, लेकिन पढ़ाई को भी समय दो। अब जैसे आप खाना खाने का समय है ना, कि हाँ ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये बात मायने बिठा लो। मतलब आप पता नहीं ऑफलाइन क्लासेस हो ना हो, लेकिन आप इस बात को मैं अब मेरी याद रखना, कि पढ़ाई आप अपने आप को दुनिया से सेव करने के लिए करते हो, ताकि कोई आपको आपको किसी तरह से चीट ना कर पाए। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप पढ़ोगे, नहीं आ रही है तो समय समझा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ये बच्चा होता है ना, ये पढ़ता कैसे है? ये ऐसे पढ़ता है, अरे बॉस सिलेबस है कर लूंगा, अरे बॉस सिलेबस है, सॉरी सॉरी गलत हो गया, फिर से बताता हूँ। ये बच्चा इतना सारा सिलेबस है कर लेंगे, अरे थोड़ा ही तो हुआ है और कर लेंगे, अरे थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा ही तो है कर लेंगे, थोड़ा ही तो है कर लेंगे, अंत में जाके वो ट्रायंगल बन जाता है। और इतना सारा सिलेबस वो पेपर के अंत में नहीं कर पाता। ठीक है, और परफॉर्म नहीं करता। ये बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग से ही सारा सिलेबस कवर अप करके चलता है, और एंड में आके इतना शार्प हो जाता है ना ये बच्चा, ये कि ये किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ये क्रैक कर देगा किसी भी एग्जाम को। आप चूज कीजिए, इसकी तो मैं बातें नहीं करूंगा। ठीक है,
क्योंकि इसका कुछ हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्म इसमें होता है, ये ट्रांसफॉर्म इसमें होता है, ये कभी भी इसमें नहीं आ सकता, नो नॉट पॉसिबल। तो जो कोचिंग में है बच्चे वो इस दो कैटेगरी में ही आते हैं, बाकी स्कूल में आपको ऐसे मिल जाएंगे कैटेगरी के, बाकी आप लोग इच्छा है। बाकी मेडिकल्स भी होते हैं कई बार, जो मतलब लोअर क्लास बच्चा होता है वो चमत्कार कर जाता है कभी कभी, बाकी बहुत रेयर होता है ऐसा, मैंने आज तक नहीं देखा। बात करते हैं आगे, रिएक्शन विद वाटर की, किस तरह से ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है मेटल। ध्यान रखना, जब मेटल रिएक्ट करेगा कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ, तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। And next reaction is the reaction of metal with vapor or you can say steam. जब स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर से मेटल रिएक्ट करता है तब वो बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? Yes. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक, कौन से मेटल कोल्ड से करेंगे, कौन से हॉट से करेंगे। देखो आपको ये बात समझनी चाहिए कि रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनको एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर देंगे। और जब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, calcium hydroxide and hydrogen. Now again you can see here that in the first two reaction, these reactions are extremely vigorous to an extent that the heat released is going to burn this hydrogen, and this burning hydrogen will be burning sodium, and again in the this case burning hydrogen is going to burn, sorry, this burning hydrogen is going to burn potassium, this burning hydrogen is going to burn sodium. So sometime you will find a question that why do we keep sodium and potassium in kerosene? Can you explain this now? So because if we kept them in air or in water, they will react violently and immediately catches fire. अनुराग बेटा उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सो गए थे क्या? आँख खुल नहीं गई? सर, नेटवर्क प्रॉब्लम सर। अच्छा, तो चाय वाय मंगाऊं? नहीं सर। अच्छा, बताओ हिमानी, what is your explanation? How you are going to explain this? How they react with each other? Can you hear me? Yes, sir. बताओ। बेटा देखो, गलत बोलोगे इससे ऊपर कुछ होगा, है ना? हम ये सोचते हैं कि मास्टर का अगर हम गलत कुछ बोल देंगे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। आप लोगों की इमेज ही नहीं होती टीचर्स के आगे, ट्रस्ट मी। आप लोगों की इमेज बस एक ही तरीके से बनती है हमारे आगे, मार्क्स से। हम जब मार्क्स देखते हैं आप लोगों के तभी इमेज बनती है, अदरवाइज हम कभी भी आप लोगों की इमेज नहीं बनाते। कोई भी टीचर आप लोगों की कभी कोई इमेज नहीं बनाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से ही आपकी इमेज बनाएगा। गलत तो मैं भी बोल सकता हूँ, अभी देखो मैंने गलत नहीं बोल दिया था, पोटेशियम को सोडियम बोल दिया था। सो ट्राई टू आंसर नाउ, how you are going to explain this, that why do we keep sodium, potassium, in fact lithium also in kerosene? चलो ज्योति तुम बताओ, ज्योति कैन यू आंसर?
sir. Try to answer this. Because they are highly reactive metals and reacting obviously with air. To prevent this explosion, they are kept in kerosene. बेटा तुम्हारी बस क्लियर नहीं आ रही, Sir, प्लीज दोबारा बोलो, माइक के पास बोलो. because they are highly reactive metals and react vigorously with air. To prevent this explosion, they are kept in kerosene With oil. air, are you sure? With air, Oxygen. oxygen. Anurag, can you try? अनुराग, इसे Yes, बोलते हैं sir. फॉर. हाँ बेटा, कहाँ खोया हुआ है बेटा, आंसर पूछ रहा हूँ तेरे से, Yes, sir. बताओ. एक मिनट सोच रहा हूँ सर. यार, आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, कुछ नहीं आता तो बोल देना बेटा, एक बार में खत्म कर बात. क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी कीप सोडियम पोटेशियम इन वाटर, 2 मार्क्स. कैसे एक्सप्लेन करना है इसको? यू विल टेल दैट sodium and potassium when react with moisture, and moisture means water, it liberate potassium hydroxide and sodium hydroxide, hydrogen, and large amount of heat is released. This heat released is sufficient to burn this hydrogen, and this burning hydrogen is going to burn your sodium or potassium. Is that clear? Yes, sir. Okay, सर एक write और this बार down. एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ बेटा, मैंने सिंपल सी बात बोली, जब आप सोडियम पोटेशियम को ओपन एनवायरनमेंट में लेकर के आते हो तो दरअसल वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर से यानी कि पानी से रिएक्ट करता है, और पानी से रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है कोरस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. और ये हीट रिलीज्ड इतना है कि ये हाइड्रोजन को बर्न कर देगा, और वो बर्निंग हाइड्रोजन फिर करस्पॉन्डिंगली सोडियम या पोटेशियम को बर्न कर देगा. इसलिए हम बोलते हैं कि सोडियम पोटेशियम में आग लग गई. दरअसल वो आग लग कैसे रही है, वो पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए. क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर. चलिए, अगर आप थर्ड केस देखो, यहाँ पे कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, पर ध्यान दीजिएगा कोल्ड वाटर से ही कर रहा है, और दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. लेकिन यहाँ जो हीट रिलीज हो रही है, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न दिस हाइड्रोजन, एंड इफ दिस नॉट हाइड्रोजन इज नॉट बर्निंग, व्हाट विल हैपन? सपोज ये आपका बीकर है, ये पानी का लेयर है, ये कैल्शियम है, तो ये जो बबल्स हैं हाइड्रोजन के, वो उसके सरफेस पे आ जाएंगे, it will make it float. So calcium starts floating in water. तो एग्जाम में आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि why does calcium floats on water? तो क्या समझाओगे अनुराग? बेटा अनुराग, Yes, sir. एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ गया कि why does calcium floats on water, तो what you are going to explain? ज्योति कैमरा ऑन करो बेटा, आप मल्टीपल टाइम्स कैमरा ऑफ कर रहे हो. आई गेस आप यहाँ पे हो भी नहीं इस वक्त. सर क्लास लीव हो जाती है. क्या बेटा? क्लास लीव हो जाती है, थोड़ी देर में अगर ऑन करती हो तो. नींद आती है? क्लास लीव हो जाती है. ओके ओके ओके. बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे अक्षित इसको? Sir, the heat produced in the reaction when calcium react with water is very low, and it is insufficient to heat the hydrogen. So the Not heat the hydrogen hydrogen, to burn the hydrogen. to burn the hydrogen. So the hydrogen formed in this reaction gets stuck to the calcium metal,
through bubbles, and it makes the calcium metal to flow on water. Got this point? सभी को समझ में आया ये पॉइंट? अनुराग? Yes, sir. Yes, sir. अनुराग? Yes, sir. हाँ, जाग रहा है ना बेटा? सो नहीं रहा? नहीं सर, वो एक मेल Wake आया up था everyone. फिटजी की साइड से। फिर जी? यस सर, आज वो उसका बिग बैन टेस्ट था, तो सर मैं उसमें सुबह से लॉगिन कर रहा था ना सर, तो लॉगिन हो नहीं रहा था, इसलिए मैं क्लास में भी लेट आया। अच्छा, वो मैं जानता था तो यही सब कुछ कर रहा होगा एक्टिविटी। तो टेस्ट नहीं दिया बिग बैंग का? सर हुआ ही नहीं अभी सर, मेल आया है कि अभी अल्टरनेटिव डे एग्जाम डेट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सीखा कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है। अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं करता, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, और ये देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. तो अगेन आप देख सकते हो, heat evolved is not sufficient to burn this hydrogen. Again, magnesium starts floating. तो कैल्शियम मैग्नीशियम starts floating एग्जाम में क्वेश्चन आता है when put into water. तो तैयार रहना इस क्वेश्चन के लिए। एग्जाम में या तो ये आएगा या कैल्शियम सोडियम पोटेशियम का जो उसको हम पानी में डालते तो आग लगती है ना, इस पे ये दो सवाल आप लोगों को मैं बता दिए हैं, ये सवाल आएंगे। लेकिन अगर मैं इसी मैग्नीशियम की रिएक्शन स्टीम से करा दूं तो क्या होगा? तब बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते। रिमेंबर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन do not react with hot and cold water. ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो बात करते हैं रिएक्शंस की। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है वाटर से, स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर से, और देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक भी स्टीम से ही रिएक्ट करता है। मैं स्टीम को ऐसे भी शो कर सकता हूँ, गैसेस फॉर्म लिख करके वाटर से। देखा, जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आयरन रिएक्ट करता है वाटर से, स्टीम फॉर्म वाटर से, तो देता है आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या कॉपर रिएक्ट करेगा वाटर से? चाहे वो हॉट ले लो, कोल्ड ले लो या स्टीम ले लो, क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। व्हाई नो रिएक्शन? क्योंकि सब वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। Others, can you answer this question? Why copper is not reacting with water? Jyoti, Anurag, Himani, बताओ। Because copper is less reactive. What happened when copper is less reactive than hydrogen? What is the actual reason here? What happened due to less reactivity of copper?
What happens due to less reactivity of copper? हिमानी, बताओ बेटा। सर वो लेस रिएक्टिव होता है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन को। गुड हिमानी। अनुराग, लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पा रहा? सर क्योंकि उसकी बैलेंसिंग वाले सर मतलब ऑक्टेट है वो बैलेंस। अर्थात तात्पर्य क्या है इससे आपका? चलिए मैं बता देता हूँ, कोशिश तो करी आप लोगों ने। तो ये होता क्या है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही है। बट लेस लेस रिएक्टिव होने के कारण हुआ क्या एक्चुअली, हमें वो समझना है। देखिए यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो हो कैसे रही है, क्या कर रहा है, ये मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। दरअसल ये है कौन सी रिएक्शन, ये मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। am I right? यस सर। Yes, sir. नाउ जब भी मान लो मैग्नीशियम अगर हाइड्रोजन को हटाएगा तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में आएगा, एस प्लस के फॉर्म में आएगा। अब सोचो, मान लो आप किसी रेंटेड होम पे रहते हो और तो मकान मालिक जो तुम्हें वहां से तुम्हें हटा दे, तो तुम क्या बोलोगे, भाई साहब आपने तुमको अगर यहाँ से हटा दिया तो मैं तो अनस्टेबल हो गया, आप मुझे एटलीस्ट कुछ तो दीजिए कंपनसेशन, कहोगे कि नहीं कहोगे? Yes. ठीक है, तो बदले में वो आपको कुछ रुपए देगा कि क्योंकि वो उसने ओवरनाइट खाली करवाएगा आपको आपसे वो घर, तो डेफिनेटली वो आपको एक कंपनसेशन देगा ताकि आप एट टाइम स्टेबल हो सको कहीं भी जाकर के। तो होगा क्या, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को ताकि वो एटम बन सके और दूसरे एटम के साथ, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस दे सके। अब सेम ऑफर यहाँ पे कॉपर भी लेके गया था हाइड्रोजन के पास, समझे? लेकिन यस सर। लेकिन कॉपर की इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इट इज जस्ट लाइक कि कोई, सोचो आप किसी जिसके घर में रह रहे हो, बहुत ही कमजोर इंसान है और वो आपको 10 रुपए दे कि तो 10 रुपए लो और कमरा खाली कर दो, तब क्यों कमरा खाली करोगे फिर? नो सर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपको हटाने वाला कमजोर है तो आप नहीं हटोगे। यहाँ पे भी यही हो रहा है, कॉपर इज वीकर बिकॉज कॉपर जो ऑफर दे रहा है ना, और जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है आसान भाषा में बोलो तो केमिस्ट्री के टर्म्स में, तो वो कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए वो उसको हटा नहीं पा रहा है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं हो रही है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. तो नो इस तरह सर। से रिएक्शन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सभी ने ले लिया? Yes. Okay. Now we'll talk about reaction of metal with dilute acid. देखो अब ये है क्या, मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तब वो बनाता है मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, किसी को इसमें दिक्कत है क्या?
No, sir. नो सर। मैंने बोला है कि मेटल का रिएक्शन डायल्यूट एसिड से कराओगे तो मेटल एसिड का हाइड्रोजन हटाएगा और मेटल का सॉल्ट बनाएगा। ये रिएक्शन तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताई है। ठीक है, अब रिएक्शन को देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम सोडियम तो मतलब बहुत विगरसली रिएक्ट करेंगे आपके डाइल्यूट एसिड से। बनेगा KCl प्लस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बहुत विगरस रिएक्शन होगी। सेम गोज विद कैल्शियम आल्सो, पर यहाँ पे जो रिएक्शन का जो वाइग्रसनेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम लेस विगरसली रिएक्ट करेगा और HCl से। एल्यूमिनियम और कम रिएक्ट करेगा। जिंक और कम रिएक्ट करेगा। कम रिएक्ट करेगा मतलब ये उतने इजीली रिएक्शन नहीं होने वाले। एज यू आर मूविंग डाउन द series of reactor series, you will find कि रिएक्शन उतनी इजीली नहीं हो रही है। कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। सभी को क्लियर है इक्वेशंस? यस Yes, sir. तो ये बहुत ही इजीली हो गए। ये थोड़ा टाइम लगा, इसमें और टाइम लगा, इसमें बहुत टाइम लगा, इसमें तो, ये तो हुआ ही नहीं। अगेन क्वेश्चन उठता है ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई? Why no reaction? Why? बताओ। बताओ अनुराग। यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन एसिड से क्यों नहीं हुई? आई थिंक सर वही 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 सर सर ये लेस रिएक्टिव है तो सर ये हाइड्रोक्लोरिक सब रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देखो जितना ज्यादा आप टेक्निकली सही बोलोगे उतना ज्यादा आपकी बातों की वैल्यू होगी पेपर में, है ना? यस सर। तो आपको टेक्निकली सही बोलना है, आपके आंसर्स टू द पॉइंट रहने चाहिए। ज्योति बेटा बताओ। ज्योति Because copper हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है? लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है? लेस रिएक्टिव से क्या मतलब है? हिमानी यस सर। बताओ बेटा, लेस रिएक्टिव से क्या मतलब है? सर जो किसी भी कंपाउंड के साथ कंबाइन होने पे लेस रिएक्ट करता है। मेटल्स आर लेस रिएक्ट, मैं कह रहा हूँ कॉपर बहुत, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बताओ अक्षित। यस सर। What do you understand when I say that copper is less reactive and it's a less reactivity, it is not displacing hydrogen in acids? सर मींस उसमें इतनी पावर नहीं है, वो इतना रिएक्ट नहीं कर। पावर? सर मतलब उसमें इतनी वो रिएक्टिविटी, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। हाँ, ये टर्म सही रखो, पावर, फिर डायोप्टर भी लगा दोगे, फिर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया सब डिस्कस कर दोगे इसमें, है ना? फिजिक्स नहीं है ये, आपको टेक्निकली सही बोलना पड़ेगा। टीचर आपकी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है? जहाँ पे उसको गलती मिलेगी वो मार्क्स काटेगा।
आपको ही बताना है that copper is less reactive due to which it has less tendency to donate electron and it won't be able to displace hydrogen thus due to this only। तो पता है हाइड्रोजन को हटाना है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, अभी तो समझाया था। हाइड्रोजन को अगर हटाना है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा उसको, और इलेक्ट्रॉन वही दे पाएगा जो उसको फोर्सफुली दे पाए इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? HCl में ऑलरेडी वो स्टेबल है, आप ऑलरेडी घर में आप अपने आप को स्टेबल स्टैब्लिश कर लिया है। अब आपको उस घर से मुझे निकालना है तो कुछ तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ना, कि निकलो उस घर से, बदले में ये लो 100 रुपए, जाओ। ठीक है, हालांकि 100 रुपए तो बहुत कम बोले, 1 लाख रुपए लो और जाओ। तो इस तरह से ही आप हटोगे, नहीं तो आप नहीं हटोगे। इतना चल रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया है तब भी समझ नहीं आया, वेरी बैड। चलिए, अब आप सभी बच्चे मुझे ये नोट करने के बाद इन सभी की रिएक्शन करा के दिखाइए, मेटल की रिएक्शन करा के दिखाइए डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और सॉल्ट बनाइए फटाफट और मुझे कॉपी दिखाइए। Sir, done. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Sir, doing. क्या हुआ? अच्छा, मुझे जिसका उसमें नंबर है व्हाट्सएप करो मुझे अपनी वो वर्कशीट जो आपने अभी किया है। जिसके पास नहीं है मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। शो मी योर वर्क। वर्कशीट दिखाइए अपनी, क्या किया है आप लोगों ने। Sir, 2 minutes. ज्योति, हिमानी, हो गया बेटा? पर
Okay, Akshat, I have received your worksheet. Okay, so you also need to write dilute. Okay, you haven't mentioned dilute H2SO4 in every reaction. You have to mention this in every reaction. Got my point? Okay, sir. Others, what you all are waiting for? Sir, sending. Yes. Okay, I have received for Himani also. हिमानी आपको बेटा उसका देखना वो Na2SO4 में आपने 2 साथ में लिख दिया है बट 2 उसके नीचे आएगा। कहाँ पे सर? Na2SO4 जो आपने लिखा है ना यस। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने इसको ओके सर, ऐसे लिखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं भी आपको क्या लिखा हुआ आपने। देख लिया आपने सर। Na2SO4 लिखा हुआ है, ये गलत है। इट शुड बी Na2SO4। एल्यूमिनियम सल्फेट आपको बनाना नहीं आया। चलिए मैं रिएक्शन लिख कर दिखाता हूँ सारी ये। सर मैंने भी भेज दिया। देख रहा हूँ। ये होगी रिएक्शन। और आयरन के साथ क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा। ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, लेट मी सी। बहुत कष्ट किया आपने बेटा अनुराग, इतनी मेहनत कर डाली, एल्यूमिनियम तक ही लिखा आपने। बाकी ये कौन लिखेगा? सर लिख रहा था लेकिन सर आपको जल्दी चाहिए। अच्छा, बाकी लोगों ने जल्दी भेजा है। और ये रिएक्शन में समझाना बेटा, ये कैसे कैसे होगा ये वाला, इसको एक्सप्लेन कर मेरे को। ये Cl2 तू कहां से लगाया? तू तो ब्रह्मा जी से ऊपर निकला, मैटर क्रिएट कर रहा सीधा तू। कैसे कर देते हो ये सब?
अनुराग सरो लिखने में मिस्टेक हो गया मेरे से। बेटा गलती नहीं है ये आप कुछ सोच के रहे थे। आप क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं आपने क्या किया है। आपने पुराने रिएक्शंस की कॉपी करने की कोशिश करी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो उसी में ही आपसे गलती हुई है। थोड़ा सा इनोवेटिव वे में सोचो। इसकी बैलेंस देखो, हर चीज यूनिक है, कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला। तो आपको ये सोचना है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है जब भी वो कंबाइंड स्टेट में थ्री होती है। चार्ज उस पर +3 का आता है। सल्फेट का होता है -2 चार्ज, तो वैलेंसी उसकी 2 हो गई। ये इस तरह से कंबाइन करेगा। ज्योति तुम्हारी वर्कशीट नहीं आई अभी तक, ये बनेगा कंपाउंड। ज्योति कैन यस यू हियर सर। मी? ज्योति कैन यू हियर मी? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या हुआ बेटा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, इधर नेटवर्क इशू है। तो बेटा छत पे बैठे पढ़ लो, धूप है, सर्दी का मौसम है, संग बात भी हो जाएगा, आप लोग पढ़ भी लोगे। ऐसे लोकेशन में बैठा करो आप लोग जहां पे आपको इंटरनेट मिले। नहीं तो मैंने आपको बताया ही है, जो इतना देखो बेटा, आप लोगों की पूरी क्लासेस चलनी है ऑनलाइन इस पूरे सेशन, जितना मैं समझ रहा हूँ। स्कूल खुलने से रहा, स्कूल खुलेगा भी तो फिर बंद हो जाएगा, जितना मैं समझता हूँ। एक आध दो कोरोना केस निकलेगा, वो बंद रहेगा स्कूल। तो ये बात जान लो, ऑनलाइन चलना है सब कुछ आप लोगों का 1 साल तक कम से कम। तो इस ऑनलाइन के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो अपना अपना अरेंज करो। पहला, एंटी ग्लेयर स्पेक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है ये चश्मा, तो बच्चों वाला बन जाता है, 1000 रुपए हार्डली, लेंस कार्ड से या जहां से भी आप बनाना चाहो बनवा लो। पहला, वाईफाई लगवा लो बेटा। जियो का 470 रुपीज में आपको अनलिमिटेड स्पीड दे रहा है, 30 MPS का, ठीक है। तो आपको आपकी जो स्टडीज है एटलीस्ट वो हैम्पर नहीं होगी। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इंटरनेट की है, याद रखना इस बात को, क्योंकि सब कुछ आपका ऑनलाइन चल रहा है। मैंने भी आज तक वाईफाई नहीं लगाया था, पर मैंने इस पैंडेमिक में वाईफाई लगवा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सारा काम अब ऑनलाइन ही चलना है, तो वाईफाई की जरूरत है मुझे, है ना? यस सर। ठीक है। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए। बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड बहुत खतरनाक किस्म का एसिड है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है वेरी डाइल्यूट एसिड, फिर आता है डाइल्यूट एसिड, फिर आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये 3 एसिड है। ये डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ये दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया सभी को ये बात? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अब मैं बात करता हूं। देखो होगा क्या, आपको अभी मैंने बताया कि जो HNO3 है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म और डाइल्यूट फॉर्म, ये दोनों ही फॉर्म में क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके कारण क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन रिलीज होता है ना एसिड और मेटल के रिएक्शन से, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा H2O में ये। और HNO3 जो है वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, किसमें, NO2 में हो जाएगा, या N2O में हो जाएगा, या फिर NO में हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं कॉपर कॉपर की रिएक्शन कराऊं HNO3 से, बाकी एसिड्स रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ रिएक्शन होगी और यहाँ बनेगा कॉपर नाइट्रेट, NO2 एंड H2O। यहाँ जो आप H2O देख रहे हो हाइड्रोजन की जगह पे, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, और हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट कर देगा।
और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में रिड्यूस हो गया खुद ये। समझ में आया? अरे सो रहे हो क्या? हाँ या जवाब दो। यस सर। Yes, sir. So remember this thing. Now what about very dilute? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो भी बता रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे सवाल आएगा, कंफर्म है कि HNO3 के रिएक्शंस के बारे में बात करेगा आपसे, पूछेगा कि हाइड्रोजन इवॉल्व क्यों नहीं होती, व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बताओ जोशना, जोशना नहीं ज्योति। ज्योति बेटा हो भी क्लास में या क्लास में नहीं हो? यस सर, क्या होता है? आप कहाँ थे पहले तो ये बताओ। सही पे। तो क्वेश्चन तो मैंने आपसे बहुत क्लियरली पूछा है। सर आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। बेटा तो मैं बोल तो रहा हूँ बेटा, छत पे आ जा, छत पे बैठ के पढ़ ले, क्या हो मैं जाएगा वह, छत पे बैठ के पढ़। मैं वही वहीं पे ही हूँ, फिर भी नहीं आ रही। ये तो ट्रेजेडी है फिर तो, है ना, इसका कुछ नहीं कर सकते। बताओ अनुराग इसका आंसर। Yes, sir. आंसर Sir, बताओ। H2 is not evolved when metal react with nitric acid, sir, because H2 oxidizes with oxygen to form water. हिमानी यस सर। बताओ आंसर। सर बिकॉज जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर प्रोड्यूस करने के लिए और खुद रिड्यूस हो जाता है। गुड, यही लिख के आना एग्जाम में और ये रिएक्शन लिखना है। अब हम बात करते हैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन की। अब ये जब भी आपका वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन, और बनता है मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ, ना कि वाटर। क्लियर है सभी को? यस। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। Yes, sir. चलिए अब मैं बात करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसका नाम है एक्वा रिजिया, और एग्जाम में ये आता है, याद रखिएगा एक्वा रिजिया के बारे में। सो व्हाट इज एक्वा रिजिया? Is a freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of
कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दरअसल एक्वारिजिया जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है। इसमें एक पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट होता है HCl। अर्थ क्या है इसका? व्हाट इज द अर्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट? द अर्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 75 ml क्या होगा? HCl होगा, और 25 ml क्या होगा? HNO3 होगा। समझ में आया सभी को? यस सर। सर। ज्योति आया बेटा? कभी भी इंटरनेट प्रॉब्लम है? Yes, sir. Yes. गुड। चलिए इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। हम बात करते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन की। कि मेटल जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसे रिएक्ट करता है। नाउ आपको मैंने पहले ही बताया था कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्शन अगर आपने कराई CuSO4 के साथ तो वो ZnSO4 देगा प्लस कॉपर देगा। am I राइट? सिमिलरली आयरन की रिएक्शन अगर आपने कॉपर सल्फेट के साथ कराई तो वो आपको FeSO4 देगा प्लस कॉपर देगा। तो आप देख सकते हो ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरीन। ये तो आपने रिएक्शन पढ़ी भी है फर्स्ट चैप्टर में। याद रखना, मेटल की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराओगे तो बनेगा मेटल क्लोराइड। और ये मेटल क्लोराइड कैसा होगा? आयनिक क्लोराइड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी एन आयनिक क्लोराइड। आयनिक कंपाउंड होने वाला है ये। आयनिक कंपाउंड क्या होता है आप लोग जानते हैं, आप लोगों को 9th में पढ़ाया गया है, फिर भी 10th में आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सोडियम की रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से कराऊं तो क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम की कराऊंगा तो क्या मिलेगा? पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं तो क्या मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की रिएक्शन कराया जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। एल्यूमिनियम की कराएंगे तो क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। जिंक की कराओगे तो क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड। आयरन की कराओगे तो क्या मिलेगा? आयरन क्लोराइड। कॉपर की रिएक्शन कराओगे क्लोरीन से तो क्या मिलेगा? कॉपर क्लोराइड। अब देख सकते हो यहाँ रिएक्शन हो गई है क्लोरीन के साथ। अब सवाल उठा ऐसा क्यों हो गया सर, कॉपर की रिएक्शन क्यों हो गई? देखो पहले केसेस में क्या हो रहा था, HCl और H2O में कॉपर रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही थी। यहाँ पे कंपटीशन था वहां पे कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है या कॉपर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर की रिएक्शन जब क्लोरीन से करा रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो कोई कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है कहीं से। तो क्या बनेगा? CaCl2 आराम से बन जाएगा। सिंपल सी बात है। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर।
स्क्रीनशॉट लो। चलिए अगला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखिए अगर मैं बात करूं, हम अपनी बात करें तो हम किस किस बच्चे को करेला खाना पसंद है? वेरी नाइस, हिमानी। और कोई है जो करेले का शौकीन हो? मोस्टली बच्चे नहीं होते, मैं भी नहीं हूँ, है ना। लेकिन अगर चूज करना पड़े करेले और गुलाब जामुन में, तो क्या चूज करोगे? सर गुलाब जामुन। अच्छा, मेरे को लगा करेला बोलने वाले हो। अक्षित, यस सर। क्या चूज करोगे, करेला या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। वेरी नाइस। अनुराग, यार गुलाब जामुन। ज्योति, गुलाब जामुन। अब मैं भी वही चूज करूंगा वैसे तो, ठीक है। लेकिन ये हमारी टेंडेंसी है चूज करने की, है ना। लेकिन अगर स्वयं पिताजी आ जाए सामने, पापा आ जाए, पापा तुम्हें बोल नहीं खाओ, करेला खाओ, तो खाओगे ना करेला? खाओगे ना, यस सर। यस है सर। ना। सो होप यू अंडरस्टैंड, जब आपको कोई फोर्स करता है तो आप वो काम भी कर सकते हो जो आप नहीं करना चाहते हो, नहीं करते हो जनरली, है ना। जैसे कि पेपर और में पढ़ाई वाली बात हो गई, ऐसे हम पढ़ते नहीं है, पबजी संभालते हैं दिन भर, पबजी सोल्जर्स। लेकिन जब पेपर आते हैं तो किताबें खुल जाती हैं। तो याद रखना, एक हाईली रिएक्टिव मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड देता है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो, हाइड्रोजन की जनरल टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। लेकिन जब भी मेटल हाइड्राइड बनता है ना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को, बोलता है रखो, मैं कह रहा हूँ रखो उसको। ऐसे काम कौन कर सकता है? पोटेशियम कर सकता है, सोडियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है। ये फोर्सफुली हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और बनाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड। अगर आप इसको आयनिक फॉर्म में देखोगे ना, ये के प्लस होगा या एच नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। पर जनरली हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। इन सभी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के बाद, ये सारे ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये भी आयनिक हाइड्राइड है, याद रखना, ये भी आयनिक कंपाउंड है। इन सभी के डिस्कशन करने के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, मेटल्स को अरेंज किया वर्टिकल कॉलम ऑफ देयर रिएक्टिविटी, और उसको बनाया रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। तो दरअसल वो एक्टिविटी सीरीज इस ऑब्जर्वेशन से तैयार हुई है, ना कि इस ऑब्जर्वेशन से वो रिएक्शंस लिखे गए हैं। तो अभी जो आपने लिखा, जो आपने किया है, वो सारा का सारा क्या है, ऑब्जर्वेशन था। आपने पाया पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, क्लास 10th एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10th ही कहता है पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये आपके क्लास 10th एनसीईआरटी कहती है, क्लास 10th एनसीईआरटी ये कहती है कि ये मोस्ट रिएक्टिव है। और गोल्ड क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, पर हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, व्हाई डू वी कीप हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? कोई बताएगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस, व्हाई डू वी कीप देम?
Sir, because it can act as metal as well as non-metal. ना भाई, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। सर वो इलेक्ट्रॉन लूज भी तो कर सकता है। वेरी गुड। हाइड्रोजन मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को इसके रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ना, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन ये सारे। मास्टर इससे ऊपर नहीं जाने वाला, जो मैं बता दूं क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा, इस एग्जाम में नहीं आएगा, अगले एग्जाम में आएगा, पर आएगा। ठीक है, चलिए अगली बात। अब मैं बात करता हूँ ओलंपियाड पर्पज से। सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है सीजियम, याद रखना। एक्चुअल में ये होता है मोस्ट रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव होता है प्लेटिनम। ये होता है लीस्ट रिएक्टिव। सबको ये याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब आप सभी के पास 2 मिनट का समय है, रिएक्टिव सीरीज को याद कीजिए और मेरे को सुनाइए फटाफट। सारे बच्चे रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। सबसे पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, याद हो गया सभी को? प्लांट चलिए सुनाइए, अनुराग सुनाइए बेटा। Sir, 1 minute. सर मैं सुना, बताओ। सर कैल्शियम से या फिर सोडियम, वो पोटेशियम से। पोटेशियम, कैल्शियम नहीं, सीजियम है वो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। गुड। हिमानी, याद हो गया? नहीं सर। वेट फास्ट। ज्योति, Yes, sir. सुनाओ। Potassium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, कैल्शियम कहाँ गया gold. बेटा? कैल्शियम नहीं बताया आपने मुझे, Sir, sorry. दोबारा याद करो। अनुराग, अनुराग, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, माइक चेक, Yes, 1 2 sir. 3। बताओ बेटा। Yes, sir. Sir, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, uh,
हाइड्रोजन, कॉपर, टिन कहाँ गया, टिन मर्क्यूरी, कहाँ गया, टिन नहीं बताया तुम्हें, टिन को छोड़ दिया। जिंक, टिन, आयरन, स्टार्टिंग लेड, से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। गुड। हिमानी, वांट ट्राई? हिमानी ट्राई करो बेटा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर, जिंक, ये बेटा आयरन, कॉपर नहीं है, कॉपर नहीं है। स्टार्टिंग से करो, दोबारा से स्टार्ट करो, कोई नहीं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं है बेटा। सिल्वर, ओ सर सिल्वर, गोल्ड। गुड। ज्योति? Sir, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. वेरी गुड। चलो तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, एंड आप लोगों को डीवीडीज अपलोडेड है, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, यस सर। चलिए, लेट मी नो कोई डाउट हो तो। सर आपकी मेल आईडी भेज दो नोट्स में सेंड करने के लिए। भेजा हुआ है मैंने वैसे तो, दोबारा भेज देता हूँ। So I have sent you my email ID. You can send me your notes on that. Okay? यस सर। चलिए, Okay, sir. आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे। Okay, keep studying. Have a fantastic Sunday. Bye.